Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this lecture we will discuss Friedel Crafts acylation in detail. The substitution of acyl group in the aromatic compound is termed as Friedel-Crafts acylation. This reaction can be brought about when an aromatic compound is treated with acid halide in the presence of Lewis acid catalyst. For example, when benzene is treated with acid halide in the presence of Lewis acid catalyst, one of the hydrogen of the benzene is replaced by this acyl group. That's why this reaction is called acylation or Friedel-Crafts acylation, as it was also carried by Friedel and Crafts. Just like alkylation, two mechanisms have been suggested for this reaction as well. Both mechanisms they differ from each other by the identity of attacking electrophile. Two mechanisms operate depending upon the reaction conditions, although the overall reaction is the same. In first pathway, as you can see, the Lewis acid this is Lewis acid, it interacts with these acid halides and removes this chloride ion, and in this way forms a carbocation, acyl cation as a part of this ion pair. Then this carbocation in this ion pair undergoes attack by aromatic compound to give this intermediate, valent intermediate. Then this valent intermediate loses hydrogen ion to this tetrachloroaluminate ion to give rise to the final product, which is an aromatic ketone. In the second pathway, the effective electrophile is not a acyl cation as a part of the intimate ion pair, rather is a polarized complex formed as a result of interaction between acid halide and Lewis acid. You can see here that this Lewis acid interacts with this acid halide and this polarized complex is formed. Interaction of Lewis acid takes place with this electronegative oxygen, and in this way this pi bond gets weakened and an attractive interaction is developed between Lewis acid and oxygen. In this way this polarized complex is formed rather than acyl cation. Now this polarized complex as a whole acts as an electrophile. It is a bulky electrophile because Lewis acid becomes a part of the acid halide and as a whole attacks on the benzene ring. So at first this intermediate is formed, then this is converted into the rhenium ion or sigma complex or valent intermediate of the reaction. Then with the loss of hydrogen ion, with the help of this counter negative ion, tetrachloroaluminate ion, and this final product aromatic ketone is formed. acyl cation जो कि पहले मैकेनिज्म बनता है have been detected in number of solid complexes, in liquid complexes between this acetyl chloride and aluminum chloride by IR spectroscopy, in solutions in polar solvent, and in number of other cases where the R group is a bulky alkyl group. तो ये वो conditions हैं जो कि जिनमें जो है वो का acyl cation जो है वो डिटेक्ट किया गया है. But in less polar solvents and under a number of other circumstances where acyl cation are not detectable, polarized complex act as a electrophile. तो यानी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा और इसी तरह की दूसरी कंडीशंस जो हैं उनमें
पोलराइज्ड कम्प्लेक्स जो है वो बनता है, और पोलर सॉल्वेंट्स में और बहुत सारे सॉलिड कम्प्लेक्सेस में, लिक्विड कम्प्लेक्सेस में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए डिटेक्ट किया गया है कि ये जो इसाइल के टाइम जो है वो बनता है और इन्वॉल्व होता है. नो evidence for which suggest the involvement of both type of intermediates in the reaction depending upon the circumstances. So the evidence is that when this toluene is treated with this benzoyl chloride in the presence of this Lewis acid, 90% para product is found, 9% ortho product is found, and 1% meta product is found. As this methyl group in this toluene is ortho para directing, so ortho products are found preferably as compared to meta product. But the point is that this distribution of the products, या ये जो products की ratio है, it is obtained no matter what Lewis acid is used. यानी ये Lewis acid जो है इसको चेंज किया गया, तो कोई भी Lewis acid यूज़ करें तो यही रेशो जो है वो हमें हासिल होती है, यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ऑब्जर्व होती है, और यही रेशो हासिल होती है अगर बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करें या बेंजोइल बरोमाइड यूज़ करें. हालांकि बेंजाइल बरोमाइड जो है वो ज़्यादा गुड जो है इसाइलेटिंग एजेंट है, ज़्यादा रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू बेंजाइल क्लोराइड. तो यानी ये इसाइलेटिंग एजेंट जो है बेंजोइल क्लोराइड और बरोमाइड, इसकी नेचर चेंज करने से, ल्यूअस एसिड की नेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पर तो फ़र्क पड़ता है, बट एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ कंसर्न दैट रिमेन्स द सेम. यानी 99 और 1 रेशो के साथ हमें तीनों प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल होती हैं. तो व्हाट डज दिस शो? इट शोज़ the involvement of same intermediate, this phenyl cation in all the cases. यानी ये इसाइल केटाइन या फिनाइल केटाइन जो है इंटरमीडिएट होता है सब केसेस में. दैट इज़ वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ये तीनों प्रोडक्ट की जो रेशो है दैट रिमेन्स द सेम. On the other hand, in many cases the proportion of the ortho product is very small compared with the other electrophilic substitution reactions like nitration. So this situation suggests the involvement of bulky electrophile, यानी आर्थो प्रोडक्ट जो है कुछ बाज़ केसेस में इंतहाई जो है वो कम होती है, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये पोलराइज्ड कम्प्लेक्स है, और पोलराइज्ड कम्प्लेक्स चूँकि बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको आर्थो पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर होती है. तो दैट इज़ वाई जो आर्थो प्रोडक्ट जो है बहुत कम हो जाती है इन केस ऑफ पोलराइज्ड कम्प्लेक्स. नाउ कम्स टुवर्ड्स द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि rate equation of this reaction is this, in which rate is directly proportional to the concentration of aromatic compound, acid halide and Lewis acid catalyst, and this rate equation is compatible with both above mechanisms involving acyl cation as an electrophile or polarized complex as an electrophile. अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि क्या कोई और भी एसाइलेटिंग एजेंट है जिसके साथ एसाइलेशन की जा सकती है? तो इसका आंसर है यस. एसाइलेशन may also be carried out with acid anhydrides in the presence of Lewis acid. तो एसिड हेलाइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी आप यूज़ कर सकते हैं. सेम Lewis acid कैटलिस्ट की मदद से आप ये एसाइलेशन जो है वो कर सकते हैं. तो मैकेनिज़्म जो है वो सेम है कि इन द फर्स्ट स्टेप Lewis acid interacts with acid anhydride
to form the acyl cation, acetyl cation in this case, as a part of this ion pair. Then following the same rhenium ion mechanism, in which first step is the attack of this aromatic compound on the electrophile to give rise to this valent intermediate, then the loss of hydrogen ion with the help of this counter negative ion to form the final product aromatic ketone called acetophenone. तो लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना होगा कि एसिड एनहाइड्राइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एसिड हेलाइड्स, यानी एसिड हेलाइड्स के केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू एसिड एनहाइड्राइड। अब अगला पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन has been usefully employed to bring about the ring closure reactions, यानी ऐसे reactions जिनमें ring close होता है और cyclic products बनती हैं, उन reaction में ये जो है काफ़ी यूज़ किया गया है। For example, ये when benzene is treated with this anhydride, जो कि cyclic anhydride है, called succinic anhydride in the presence of this Lewis acid aluminium trichloride, this group is introduced on the ring। ये बेंजीन रिंग जो है कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे ये एक बॉन्ड है तो ये तीनों बॉन्ड या सर्कल जो है वो इन द सेंटर जो है वो प्लेस कर देना चाहिए, जो मिस हो गया। तो ये ग्रुप जो है वो इस तरह इंट्रोड्यूस होगा। और अब नो दिस ग्रुप जो है इट कैरीज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप at the terminal position। तो नो नेक्स्ट वी विल कैरी आउट टू स्टेप्स। फर्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन जो है वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड को ये मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर देगी कार्बोनाइल ग्रुप को। और नेक्स्ट थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो है इसकी ट्रीटमेंट इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को एसिड हेलाइड ग्रुप में चेंज कर देगी, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय this chloride। Now this has become an acid halide component of the compound। Now in the presence of Lewis acid catalyst, now this step is intramolecular acylation step, in which with the help of this aluminium chloride, this intramolecular acylation leads to the formation of cyclic product alpha tetralone। Now the next example is when benzene is treated with this anhydride, which is called phthalic anhydride in the presence of Lewis acid। This give rise to this intermediate product, which can be converted into एंथ्राकिनोन बाय ट्रीटमेंट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो यानी अब इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो यहाँ मौजूद है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप भी एसाइलेशन में डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पिछली एग्जांपल में आपने ये OH पहले रिप्लेस कर दिया क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके, लेकिन आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन जो है वो या एसाइलेशन जो है वो कर सकते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रोटोनेशन करेगा और इसको गुड लीविंग ग्रुप में चेंज करेगा, ये लीव कर जाएगा और यहाँ इसाइल केटाइन बनेगा और इस पर फिर ये एरोमेटिक रिंग, इस रिंग का ऐसे अटैक हो जाएगा और यहाँ एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इन दिस वे ये वो कोवलेंट बॉन्ड है जो कि बनेगा और दिस विल रिजल्ट्स इनटू द cyclization of the product, or in this way anthraquinone is formed। Now next point is the differences between Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reactions। हमने दोनों रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा है, उसकी फीचर्स भी हमारे जहन में हैं। अब हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। लेट अस कंपेयर the two reactions।
Now, these two reactions differ from each other in the following points. Number one, in Friedel-Crafts alkylation, the Lewis acid catalyst is required in smaller quantities. यानी हमने पढ़ा है ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट जो है इन रियल सेंस कैटलिटिक अमाउंट में चाहिए, और कैटलिस्ट यूजुअली जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज वो रीजनरेट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. But in case of Friedel-Crafts acylation, more than 1 mole of Lewis acid is required. यानी मोलर क्वांटिटीज इन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स जो हैं Lewis acid की चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द Friedel-Crafts acylation reaction. तो व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द रीज़न? अपेरेंटली तो रिएक्शन एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क है. दिस इज़ बिकॉज द ल्यूइस एसिड कम्प्लेक्सेस विद द प्रोडक्ट कीटोन. प्रोडक्ट कीटोन का फ़र्क है कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक कीटोन है, तो उसके साथ ल्यूइस एसिड जो है वो इस तरह आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट कीटोन है एसाइलेशन रिएक्शन की, और ये जो है ल्यूइस एसिड जो है वो इसके साथ ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एंगेज हो जाता है. इन दिस वे दिस ल्यूइस एसिड इज़ removed from the reaction and does not remain available for formation of complex and for the interaction with the acylating agent acid halide. तो इसलिए हमें जो है इसकी मोलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो चाहिए रादर देन इन कैटालिटिक अमाउंट इन Friedel-Crafts acylation. Now the next difference between alkylation and acylation is that no polyacylation occurs in acylation reaction because the product ketone is much less reactive than starting reactants and monoacylated product can easily be prepared. अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक कीटोन है, जिसमें इसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पर लगा हुआ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, जो रिंग को एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियस को डीएक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स फर्दर एसाइलेशन रिएक्शन. लेकिन हमने ये Friedel-Crafts अल्काइलेशन में ये स्टडी किया है कि उसमें प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल बेंजीन होती, तो which is more reactive than the starting aromatic compound, and in this in alkylation जो है वो मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो है वो आगे फर्दर डाई अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड एंड पोली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, एंड वी गेट अ मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स. बट इन acylation only one product, monoacylated product is obtained and can easily be separated. अब ये जो फीचर है एसाइलेशन रिएक्शन की, दिस फीचर मेक्स द एसाइलेशन रिएक्शन मोर यूजफुल कंपेयर्ड विद द अल्काइलेशन टू प्रिपेयर द अल्काइल बेंजीन. तो हम अल्काइल बेंजीन ख़ास तौर पर ऐसी अल्काइल बेंजीन जिनमें अल्काइल ग्रुप जो है वो स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप हो और उसमें कार्बन ज़्यादा हों, तो ऐसे अल्काइल बेंजीन को डायरेक्टली Friedel-Crafts अल्काइलेशन की बजाय हम Friedel-Crafts एसाइलेशन से तैयार कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर दिस अल्काइल बेंजीन इन विच देयर इज़ N-butyl ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, तो इसके लिए आप डायरेक्ट अल्काइलेशन रिएक्शन को यूज़ करने की बजाय आप प्रेफरेबली बेंजीन का आप ये इस एसिड हेलाइड के साथ आप रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट, और बाद में वाटर ट्रीटमेंट करें, तो ये इसाइल ग्रुप जो है इस पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और बाद में आप इसमें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी आप वेरियस मेथड से रिडक्शन करके इसको मिथाइलिन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, ये मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाएगा. तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन इसमें यूज़ किया गया. अदर मेथड्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर दिस conversion, but here in this reaction this Clemmensen reduction has been carried out to convert carbonyl compound into methylene group. तो अगला पॉइंट जो है
जो कि अगला डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप डज नॉट टेक प्लेस इन द एसाइलेशन एज इज़ कॉमन विद द अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उसमें चूँकि कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जो है दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रीअरेंज if the structure allows from primary to secondary or secondary to tertiary carbocation. तो बट एसाइलेशन रिएक्शन में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो रीअरेंज नहीं होता. However, decarbonylation can take place, especially where R would form a stable carbonium ion or carbocation, so that the end result is then alkylation rather than expected acylation. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला एसाइल कैटाइन जो है वो बनाएंगे जिसमें ये अल्काइल ग्रुप है जो कि बल्कि अल्काइल ग्रुप है और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इस तरह का एसाइल कैटाइन में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें से ये इसकी डिसोसिएशन हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, और इसमें से ये कार्बोनाइल ग्रुप यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में इसमें से निकल जाए और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, और फिर एसाइल ग्रुप की बजाय ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जब एरोमेटिक कंपाउंड पर इंट्रोड्यूस होगा तो वी विल गेट अल्काइलेशन रादर देन एसाइलेशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये साइड रिएक्शन हो सकता है इन केसेस में. तो इस केस में ये जो ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस डीकार्बोनाइलेशन वो है स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो जो कि स्टेबल है, तो इसलिए ये ब्रेक हो सकता है. लेकिन अगर ये अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, तो फिर ये डीकार्बोनाइलेशन नहीं होगी, फिर यही एसाइल कैटाइन का एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक होगा और एसाइलेशन ही होगी. और फाइनली द लास्ट डिफरेंस बिटवीन टू रिएक्शन इज the complex of acylating agent and Lewis acid is very bulky. एसाइलेशन रिएक्शन में आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स पोलराइज्ड कम्प्लेक्स फार्मेशन होती है बिटवीन एसिड हैलाइड एंड ल्यूइस एसिड. तो अब ये फ़र्क ये है कि जो एसाइल कैटाइन है वो एक जो है फ्री कार्बोकेटाइन होता है, तो उसका साइज़ कम होता है, और पोलराइज्ड कम्प्लेक्स जो है इसका साइज़ ज़्यादा होता है. तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आर्थोपैरा डायरेक्टिंग मानो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जो हैं दे गिव वेरी लिटिल ऑफ द आर्थो प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल ये टोलवीन है, इसकी जब आप एसाइलेशन आप करेंगे इसमें ये मिथाइल ग्रुप जो है ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थोपैरा प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर हासिल होना चाहिए, लेकिन इसमें 85% जो है वो ये पैरा प्रोडक्ट जो है वो हासिल होती है और वेरी लिटिल जो है वो आर्थो प्रोडक्ट हासिल होती है. हालांकि इसी टोलवीन का रिएक्शन अगर आप नाइट्रेशन रिएक्शन करें या अदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करें, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन विद द नाइट्रेटिंग मिक्सचर अगर करें, तो ये आर्थो प्रोडक्ट जो है 60% तक हासिल होती है. लेकिन एसाइलेशन रिएक्शन में ये आर्थो प्रोडक्ट जो है वो ना होने के बराबर क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि इसमें ये पोलराइज्ड कम्प्लेक्स बनता है इन दोनों के इंटरेक्शन से, और वो चूँकि बल्कियर इन साइज होता है तो उसको यहाँ आर्थो पोजीशन पर इस मिथाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑफर होगी, तो एज ए रिज़ल्ट जो है वो पैरा पोजीशन पर प्रेफरेबली उसका अटैक होगा और आर्थो प्रोडक्ट ना होने के बराबर हमें हासिल होगी. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट है और इफ़ेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको सॉल्वेंट जो है आल्सो इफ़ेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन द एसाइलेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल when naphthalene is treated with this acetyl chloride in the presence of this Lewis acid, और ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये सॉल्वेंट के तौर पर अगर हम यूज़ करेंगे
तो फिर ये हमें 2 एसिटाइल नेफ्थलीन जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगी, और जिसको आगे इस सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ऑक्सीडाइज करके आप 2 नेफ्थोइक एसिड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यही रिएक्शन जो है, इसी नेफ्थलीन की यही एसाइलेशन जो है, एसिटाइलेशन, अगर आप इस सॉल्वेंट की मौजूदगी में करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में, तो फिर हमें 1 एसिटाइल नेफ्थलीन जो है वो प्रोडक्ट हासिल होगी। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न भी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। किस तरह के सॉल्वेंट जो है समटाइम्स जब वो पोलराइज्ड कम्प्लेक्स को, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, तो ये पोलराइज्ड कम्प्लेक्स को जब सॉल्वेट करता है तो सॉल्वेशन के दौरान इट इंटरैक्ट्स विद दिस पोलराइज्ड कम्प्लेक्स एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ पोलराइज्ड कम्प्लेक्स, और इन दिस वे इस पोलराइज्ड कम्प्लेक्स का साइज़ जो होगा वो और भी बल्कियर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये 1 पोजीशन की बजाय 2 पोजीशन पर इसका अटैक प्रेफरेबली होगा, क्योंकि 1 पोजीशन पर अटैक स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी होगी? ये 1 पोजीशन है, ये इसके बिल्कुल ये पोजीशन जो है ये 8 पोजीशन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। टू अवॉइड दैट स्टेरिक हिंड्रेंस ये 2 पोजीशन पर अटैक होता है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में सॉल्वेशन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती पोलराइज्ड कम्प्लेक्स की, और पोलराइज्ड कम्प्लेक्स का साइज़ उतना बल्कि नहीं होता जितना नाइट्रोबेंजीन में है, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम ऑफर होगी, तो प्रेफरेबली फिर 1 पोजीशन पर ही अटैक होगा, क्योंकि 1 पोजीशन जो होती है ये 2 पोजीशन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जैसा कि कार्बन डाइसल्फाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोलराइज्ड कम्प्लेक्स का साइज़ जो है, सॉल्वेंट उसमें कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा उसके साइज़ में, तो उसका साइज़ कम है, तो 1 पोजीशन पर इसका अटैक प्रेफरेबली होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस नो प्रेजेंट एट दिस पोजीशन। सिमिलरली ये एंथ्रासीन जो है वो ये एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी भी अगर आप एसिटाइलेशन जो है वो नाइट्रोबेंजीन की मौजूदगी में अगर आप करेंगे तो ये 1 एसिटाइल एंथ्रासीन प्रोडक्ट बनेगी, और अगर यही रिएक्शन यहाँ पर ये मिस हो गया है, यही आप लिख सकते हैं, ये वाला एसिटाइलेशन जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में अगर आप करेंगे तो ये 1 की बजाय 9 पोजीशन पर होगी, 9 एसिटाइल एंथ्रासीन प्रोडक्ट होगी। तो इसकी रीज़न भी सेम है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि 1 पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो सिर्फ इस 9 पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोजन की होती है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, जबकि ये जो 9 पोजीशन है, 9 पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ऑफर होगी है, क्योंकि इधर ये जो 1 पोजीशन है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और इधर ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो एज दिस पोजीशन लाइज इन बिटवीन दीज 2 पोजीशंस, तो दैट इज़ वाई यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो लिहाजा नाइट्रोबेंजीन के केस में चूँकि कम्प्लेक्स जो है वो बल्कि इन साइज़ होता है ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, एंड नाइट्रोबेंजीन प्ले इट्स पार्ट्स इन इंक्रीजिंग द साइज़ ऑफ पोलराइज्ड कम्प्लेक्स, तो चूँकि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है सॉल्वेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो बल्किएस्ट होता है, तो इसलिए वो 9 पोजीशन जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है यहाँ की बजाय 1 पोजीशन पर अटैक होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जबकि इस केस में चूँकि कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इलेक्ट्रोफाइल का साइज़ बढ़ाने में, पोलराइज्ड कम्प्लेक्स का साइज़ बढ़ाने में, तो लिहाजा पोलराइज्ड कम्प्लेक्स जब उतना बल्कि नहीं होगा, तो इसलिए जो ये मोर रिएक्टिव पोजीशन जो है ये 9 पोजीशन होती है एंथ्रासीन की, तो फिर इसी
किनेटिकली जो फेवर्ड पोजीशन है यानी 9 पोजीशन, उसी पर ही फिर प्रेफरेबली अटैक होगा, क्योंकि अब स्टेरिक हिंड्रेंस का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्लाह हाफिज़।